Dear students, today in this lecture we will discuss about the valence bond theory of coordination compounds, and in this lecture we will discuss about the tetrahedral complexes. In the previous lecture, in the part 1, we have discussed about the geometry and bonding in octahedral complexes, and in this lecture we will discuss about the geometry of tetrahedral complexes, bonding in tetrahedral complexes एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस. स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में भी हम बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में भी हम बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. So first we will discuss about the geometry and bonding in tetrahedral complexes. In the previous lecture, that was part 1, we have discussed that the tetrahedral complexes metal center, they are sp3 hybridized or they may be sd3 hybridized, because we are talking about the transition metal tetrahedral complexes. So the central atom may be sp3 hybridized or may be sd3 hybridized, and here the d orbitals that are involved in metal ligand bonding, they are dxy, dyz and dxz. तो अब हम ये देखेंगे कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स के, उनके केस में जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें सेंट्रल एटम पर या तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है या sd3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, कोई भी हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, और इसकी वजह से इस sp3 या sd3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इनका शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल. तो ये फर्स्ट एग्जांपल है NiCO4. यहाँ पर आप देखेंगे Ni का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 28 and its valence shell configuration is 3d8 4s2. So the configuration is 3d8 4s2 and 4p is the empty orbital, and during the formation of NiCO4 all the electrons they are paired. The electron pair from 4s orbital, they are shifted towards the 3d orbital. Now you can see that this carbonyl is such kind of ligand which can pair up these electrons, so that this s and 3p orbitals, they will become vacant now, and after vacant orbitals formation they will mix and form 4 sp3 hybridized orbital, and in this sp3 hybridized orbital, because they are empty orbitals, so these 4 carbonyl groups, they can donate their electron pairs. Now again I am repeating in case of NiCO4. NiCO4 के केस में जो निकल है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, 0 है. तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, चाहे वो NiCO4 कॉम्प्लेक्स हो या सिंपल Ni, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वही रहेगा, क्या रहेगा, 3d8 4s2. दिस इज वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन. तो 3d8 में 8 इलेक्ट्रॉन है, 3 और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है. तो ये कार्बोनिल एक ऐसा लिगेंड है जो कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर देता है. तो इस कार्बोनिल की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ क्या हो गए, पेयर हो गए, और यहाँ 4s और 4p ऑर्बिटल क्या हो गए, खाली हो गए. तो जब ये खाली हो गए तो ये क्या करेंगे, मिक्स होंगे. मिक्स होने के बाद दे विल फॉर्म 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे. ये एम्प्टी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे, और ये एम्प्टी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में देन दिस कार्बोनिल इट कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर. So in this way the bonding is covalent bonding in between metal and ligand, and this molecule is diamagnetic in nature, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई भी unpaired इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, so it is diamagnetic in nature. Now this is the another example of nickel. निकल का दूसरा एग्जाम्पल है जहां पर आप देख सकते हैं कि निकल इज हैविंग द 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, so that the valence electron configuration becomes 3d8. So now the situation is different. Here d8 electrons are present, but in this case Cl cannot shift the electrons. तो यहाँ पर जो Cl माइनस जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग नहीं कर सकता. और देखिए निकिल अगर होता तो उसका वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन 3d8 4s2, तो 3d में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स,
और ये निकेल 2+ की फॉर्म में यहाँ पर है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा 3d8 और ये 4 ऑर्बिटल क्या है खाली है। अब Cl की टेंडेंसी ऐसी नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन को पेयर कर सके, नहीं तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को पेयर कर पाता तो ये ऑर्बिटल खाली हो जाता और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता dsp2। लेकिन ये Cl की टेंडेंसी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स को पेयर नहीं कर सकता, इसलिए ये ऑर्बिटल खाली नहीं होगा। कौन सा ऑर्बिटल खाली हो गया, एक s और 3p। सो these 4 orbitals they will mix and hybridize and form 4 hybridized orbital, और इन orbitals में फिर ये जो क्लोराइड आयन है it can donate its lone pair of electron. So in this way there are 4 coordinate bond, 4 sigma bond, so its geometry will be tetrahedral. This is one of the example where you will find that there is sd3 hybridization. So in case of MnO4 negative, Mn is in its +7 oxidation state. So you will find that in case of Mn, because it is having 25 atomic number, so its valence shell configuration will become 3d5 4s2. So there are 5 electrons in 3d and 2 electrons in the 4s orbital. Now in the MnO4 negative, it is 7+, so there are no d electrons, so its configuration becomes 3d0. So as we know that the energy of 4s orbital is less than that of d orbital, so here the hybridization will be, because d orbitals are empty, so the hybridization will sd3. So in case of MnO4 negative, the hybridization is sd3, where dxy, dyz and dzx, they will participate in the hybridization, and due to no unpaired electron, the complex ion is diamagnetic in nature. Again I am repeating कि MnO4 नेगेटिव के केस में जो Mn है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +7, तो +7 होने से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या हो गया 3d0, क्योंकि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन थे 7, +7 होने से सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें कोई भी नहीं है, खाली हो गए। तो क्योंकि d ऑर्बिटल खाली है, 4s ऑर्बिटल खाली है, इसलिए यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या होगा sd3 हाइब्रिडाइजेशन, एंड इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर. So this is another interesting example of sd3 hybridization. This is Cr2O7 2 negative. Cr2O7 नेगेटिव में आप ये देखेंगे, 2 नेगेटिव में आप देखेंगे क्रोमियम पर कैसा चार्ज है 6+. तो 2 क्रोमियम है, दोनों क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 3d5 4s1 3d5 4s1, बट इन इट्स 6 ऑक्सीडेशन स्टेट 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 के 6 निकल गए, तो ये ऑर्बिटल क्या होंगे सब खाली होंगे. अब यहाँ पर मैंने 4s ये पहले दिखाया है क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है, फिर आपको दिखाया है d की एनर्जी. तो ये देखिए sd3 हाइब्रिडाइजेशन इस क्रोमियम पर, और इस क्रोमियम पर भी sd3 हाइब्रिडाइजेशन है. ये 2 क्रोमियम है, और फिर ये जो 4 जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आए हैं वहाँ पर ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, और एक जो ऑक्सीजन है वो इन दोनों के बीच में क्या है ब्रिज्ड है. तो इस तरीके से आप देखेंगे Cr2O7 2 नेगेटिव की ज्योमेट्री कैसी है. अगर दोनों क्रोमियम को हम देखेंगे तो वो कैसी है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री विद sd3 हाइब्रिडाइजेशन ऑन ईच क्रोमियम एटम ऑन इन क्रोमियम कैटायन. COCl4 2 नेगेटिव, अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो ये भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है. कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा 3d7 4s2. सो 3d में 7 इलेक्ट्रॉन्स और s में 2 इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पर जो कोबाल्ट है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल बिकम 3d7, सो देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स. एंड जो Cl है वो ऐसा लिगेंड है जो कि इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग नहीं करता है, पेयरिंग नहीं करता है. तो COCl4 2 नेगेटिव में जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं 7 वो ऐसे ही रहेंगे. तो ये एक s और 3 p ऑर्बिटल को वकेट करेगा, और ये 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होकर sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगे. एंड इन दिस हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल दिस Cl- कैन डोनेट इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर. तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कैसा होगा पैरामैग्नेटिक होगा नेचर में.
ZnCl4 2 negative is an another example where you will find its tetrahedral geometry. अब जिंक को देखिए 30 इसका एटॉमिक नंबर है, सो वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन इट बिकम्स 3d10 4s2. सो 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. यहाँ पर जिंक 2+ आयन की फॉर्म में है और जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया 3d10. सो 3d10 ऑल द d orbitals they are filled. So during the formation of ZnCl4 2 negative, all the 4 orbitals 1s and 3p orbitals they are empty. They will hybridize, they will form sp3 hybridized orbitals, and in these hybridized orbital then these 4 Cl negative they can donate their electron pairs, and due to presence of only the electron pairs it is diamagnetic in nature. There are no unpaired electrons, so it is diamagnetic in nature. Now we will discuss about the metal ligand bonding in square planar complexes. So how VBT can explain the metal ligand bonding in square planar complexes, that will be discussed in this section. So this nickel complex is an example of square planar complex. You have already shown 2 nickel complexes, that one with the carbonyl ligand and other with the chloride ligand. So they are tetrahedral, but with the CN ligand this becomes square planar in geometry. So ये बहुत important example है निकल के जो 3 complex हैं NiCO4, NiCl4 2 negative and NiCN4 2 negative. इनकी geometry में difference भी कई बार आता है कि इनमें difference क्या है, what is the difference in their magnetic behavior. So they are very important. So due to presence of this CN ligand it becomes diamagnetic as well as it becomes square planar complex. तो आप यहाँ पर देखिए निकल का जो एटॉमिक नंबर है वो 28 है, वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन इज 3d8 4s2. सो 3d में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, निकल 2+ की फॉर्म में है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया 3d8. नाउ रिकॉल द डिफरेंस बिटवीन Cn एंड Cl. दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो Cn है वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर देगा, जबकि इससे पहले आपने देखा जो Cl था वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कर पा रहा था. तो जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कर पा रहा था तो वहाँ पर ये 4 ऑर्बिटल खाली थे, इसलिए उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन था. लेकिन यहाँ पर जो Cn है वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर सकता है. तो यहाँ देखिए आप चारों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए और ये इसने ये प्रोवाइड कर दिया खाली d ऑर्बिटल, एक s और 2 p. सो हाइब्रिडाइजेशन इज dsp2 एंड यहाँ पर फिर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में Cn- कैन डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड ज्योमेट्री विल बिकम square planar due to dsp2 hybridization, and it is now diamagnetic due to presence of only paired electrons. So this is the difference between NiCl4 2 negative and NiCN4 2 negative. difference ये है कि जहाँ पर Cn ligand होगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी और जहाँ पर Cl ligand होगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी. तो NiCl4 जो है वो कैसा था 2 नेगेटिव, वो पैरामैग्नेटिक नेचर में था, और जो NiCN4 2 नेगेटिव है ये कैसा है डायमैग्नेटिक है नेचर में. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ 4D सीरीज. अब यहाँ पर आप देखिए, आपको मैंने पहले पिछले लेक्चर में बताया था जो 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है, हमेशा n-1d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है हाइब्रिडाइजेशन में. तो वहाँ पर लिगेंड कोई भी हो, वो Cl हो सकता है या Cn हो सकता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी पेयरिंग हो जाएगी, सो दैट इट विल प्रोवाइड द इनर d ऑर्बिटल दैट इज n-1d ऑर्बिटल. तो आप देख सकते हैं पैलेडियम है 46 इसका, जबकि आपने NiCl4 2 नेगेटिव देखा वहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग नहीं हो रही थी, लेकिन पैलेडियम के जो क्लोराइड कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी ड्यू टू दिस पैलेडियम. इसकी वजह से नहीं, पैलेडियम की वजह से, क्योंकि पैलेडियम क्या है 4D सीरीज का मेंबर है, इसलिए ये शिफ्टिंग आसानी से इलेक्ट्रॉन्स की हो जाएगी. तो पैलेडियम का एटॉमिक नंबर 46, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो वैलेंस शेल का है वो है 4d8 5s2. सो इन द 3D orbital there are 8 electrons and in the 4s orbital there are 2 electrons. यहाँ पर जो पैलेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 है
और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया 4d8। तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है 3d ऑर्बिटल में, बट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ PdCl4 2 नेगेटिव। पीडी की टेंडेंसी क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर देता है, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पेयर कर देगा और ये वाला जो d ऑर्बिटल है इसको प्रोवाइड करेगा वैकेंट। सो देयर आर 1 2 3 4 ऑर्बिटल्स वैकेंट कर दिए, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया DsP2। और इन DsP2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में फिर ये जो क्लोराइड है इट कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। नाउ दिस कॉम्प्लेक्स इज diamagnetic in nature because there are no unpaired electrons. Now this is a very interesting example of स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। ये कॉपर का अमोनिया कॉम्प्लेक्स +2 जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन करने में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को बहुत दिक्कत आई। अभी आप देखेंगे क्या प्रॉब्लम्स थी। अब यहाँ देखिए कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है 29। सो इट्स एटॉमिक नंबर इज 29। इट्स वैलेंशियल कन्फिग्रेशन विल बिकम 3d10 4s1। 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर जो ये इसकी ऑक्सीडेशन state है वो +2 है, तो it becomes 3d9. So 9 electrons are there. So according to valence bond theory 1 2 3 4 these 4 orbitals they are vacant. तो क्या हो सकता है कि एक s और 3 p मिलके क्या हाइब्रिडाइजेशन करें sp3 हाइब्रिडाइजेशन करें और इसकी ज्योमेट्री कैसी हो टेट्राहेड्रल। तो अगर हम सिंपल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखें तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए टेट्राहेड्रल। बट जो एक्सरे स्टडी एंड ESR की जो स्टडी से सजेस्ट हुआ इसका स्ट्रक्चर कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है स्क्वायर प्लेनर। इसका मतलब है कि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है वो कॉपर 2+ का पॉसिबल नहीं है। तो कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाए कि इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर हो जाए। तो फिर कोशिश की गई इसकी स्ट्रक्चर को पता करने की। तो यहाँ पर देखिए ये कहा गया कि हो सकता है इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन है तो ये वाला ऑर्बिटल खाली होना जरूरी है अगर इसका स्ट्रक्चर कैसा हो स्क्वायर प्लेनर। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर pz ऑर्बिटल में हो और ये क्या हो जाए DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाए तो फिर क्या होना चाहिए, क्योंकि ये बाहर है आराम से इस इलेक्ट्रॉन को निकल जाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो कॉपर का अमोनिया कॉम्प्लेक्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था उसको किस में बदल जाना चाहिए आसानी से 3+ में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अगर आसानी से निकल जाए तो इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा 3d8। तो इट शुड ऑक्सीडाइज इजीली, क्योंकि इससे पहले भी आपने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में कुछ कॉम्प्लेक्स देखे जहां पर आपने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन कहाँ था 5s ऑर्बिटल में, तो वो उसको प्रूव भी करता था कि वो इजीली ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ पर लेकिन क्या होता है ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये इसमें ऑक्सीडाइज नहीं होता है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन तो क्या है DsP2 ही है इसमें, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्या है एक्सपेरिमेंटली पता चला कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है स्क्वायर प्लेनर। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इसके स्ट्रक्चर को हगिन ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ये जो इलेक्ट्रॉन का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ d ऑर्बिटल में ही प्रेजेंट रहता होगा, ये उन्होंने सजेस्ट किया। क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से इसके स्ट्रक्चर को जानना बड़ा कठिन हो गया। फिर उन्होंने ये कहा कि फिर क्या ऑर्बिटल बचे देखिए s 2p पार्टिसिपेट कर लें और एक बाहर का d पार्टिसिपेट कर ले और pz जो है वो ऐसे ही छूट जाए, pz अनहाइब्रिडाइज्ड रहे और दो जो p ऑर्बिटल हैं px एंड py एंड 1d दैट इज dx² y² फ्रॉम 4d, ये 4 ऑर्बिटल they will combine and form sp3 hybridized orbitals, and then in these sp3 dehybridized orbital ns3 can donate its electron pairs। तो ये हगिन ने एक्सप्लेन किया कि ऐसा हो सकता है कि pz ऑर्बिटल विल रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड एंड ये बाकी जो ऑर्बिटल्स हैं 4 ऑर्बिटल्स दे कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरीके से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू कॉपर का जो अमोनिया कॉम्प्लेक्स था जिसमें कॉपर 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट थी उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई कि उसका स्ट्रक्चर, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली इट वाज स्क्वायर प्लेनर, सो हगिन गिव्स सजेशंस अबाउट इट्स बॉन्डिंग। Then I will also discuss about the bonding in
ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। तो ये भी एक्सप्लेन कर पाई थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो एक एग्जांपल लिया है FeCO5 का। Fe जिसका एटॉमिक नंबर 26 है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वैलेंस शेल का वो क्या होगा 3d6 4s2। 3d में 6 इलेक्ट्रॉन और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और जब FeCO5 का फॉर्मेशन होगा तो CO एक ऐसा लिगेंड है जो कि इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग कर सकता है। और यहाँ पर आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है 0। तो इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 8। तो ये आठों के आठों इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे और इस तरीके से ये d ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा, एक s और 3 p ऑर्बिटल प्रोवाइड होंगे। सो हाइब्रिडाइजेशन विल बी dsp3। So if the hybridization is dsp3 then it is having the trigonal bipyramidal geometry। इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी क्योंकि 5 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में। और ये कैसा होगा डायमैग्नेटिक होगा क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं पेयर्ड हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ वीवीटी। अब हम ये देखेंगे कि इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की क्या लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से फिर एक नई थ्योरी जनरेट हुई, दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्योंकि जब किसी थ्योरी के फेलियर होते हैं तभी फिर कोई नई थ्योरी आती है। तो कुछ इसके ड्रॉबैक्स थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, वो क्या थे उनको हम डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज। ड्रॉबैक जो था इस थ्योरी का, एक ड्रॉबैक तो ये था कि द थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द लिगेंड्स नेचर। ये थ्योरी लिगेंड के नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो इसको ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। VBT cannot explain why some ligands pair the electrons and some ligands cannot pair the electrons of the center metal ion। तो आपने ये देखा कि जब CN लिगेंड होता है, CO लिगेंड होता है, तो उस समय तो जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है। लेकिन अगर Cl माइनस लिगेंड होता है, H2O लिगेंड होता है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं हो पाती। तो इस पेयरिंग के बारे में, क्यों पेयरिंग हो रही है और क्यों पेयरिंग नहीं हो रही है, इसके बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, इससे पहले आपने देखा NiCN4 2 माइनस, एक ये एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, NiCl4 2 नेगेटिव का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ये दो एग्जाम्पल हैं जबकि Cn माइनस के साथ पेयरिंग हो रही है और Cl माइनस के साथ पेयरिंग नहीं हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। फिर नेक्स्ट जो ड्रॉबैक है वो आप देखेंगे, इट कैन नॉट एक्सप्लेन दी हायर वैल्यूज ऑफ एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट एज कंपेयर टू दी कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई क्यों कुछ कॉम्प्लेक्सेस के केस में जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है मैग्नेटिक मोमेंट की वो हायर होती है और जो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है विद द हेल्प ऑफ स्पिन ओनली फॉर्मूला वो लोअर होती है। कुछ कॉम्प्लेक्सेस जैसे आप देखेंगे कोबाल्ट 2 का कॉम्प्लेक्स और निकिल 2+ का अगर कॉम्प्लेक्स देखें तो ये क्या वैल्यूज हैं, ये एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यूज हैं और ये कैसी हैं, कैलकुलेट की गई हैं विद द हेल्प ऑफ स्पिन ओनली फॉर्मूला। जब आप मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में आप जब पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो कोबाल्ट 2+ है इसका जो कैलकुलेटेड वैल्यू 3.88 है जबकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है। तो ये क्यों हो रहा है, जबकि हमने कैलकुलेट किया है इसको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बराबर आना चाहिए। तो ये क्यों हो रहा है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो कुछ कॉम्प्लेक्सेस में डिस्टॉर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। जैसे कॉपर का जो कॉम्प्लेक्स है ये देखिए और क्रोमियम का जो कॉम्प्लेक्स है, कॉपर 2+ का क्रोमियम 2+ का जो कॉम्प्लेक्स है उनमें डिस्टॉर्शन होता है, वो आप देखेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। तो ये डिस्टॉर्शन क्यों होता है इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। और ये थ्योरी और भी कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा एंड कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, कि ये कलर क्यों है कॉम्प्लेक्स का, क्योंकि उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होना जरूरी है। तो यहाँ पर ये थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कलर क्यों होता है।
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव रेट्स ऑफ रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि रेट ऑफ रिएक्शन क्यों अलग अलग है, रिलेटिव क्या है और मैकेनिज्म क्या होती है रिएक्शन की, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें। और ये जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका था, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ कॉपर 2+ कॉम्प्लेक्स। ये कॉपर 2+ कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस नहीं कर पाई। तो ये सारे आंसर आपको कहाँ मिलेंगे, ये सारे जितने ड्रॉबैक्स हैं इसके आंसर आपको मिलेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सब क्वेश्चंस का आंसर देगी, क्योंकि उस थ्योरी से कलर भी बताया जा सकता है कॉम्प्लेक्स का, इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बताया जा सकता है, मैग्नेटिक बिहेवियर का एक्सप्लेन किया जा सकता है और स्पेक्ट्रा को डिस्कस किया जा सकता है कॉम्प्लेक्सेस के, और एनोमेलस मैग्नेटिक मोमेंट को भी डिस्कस करेंगे। तो ये सारे ड्रॉबैक्स की वजह से फिर एक नई थ्योरी आई, दैट इज क्रिस्टल फील्ड theory of coordination compounds. So these are different drawbacks of valence bond theory. Now I am concluding this lecture. अब मैं इसको conclude कर रही हूँ। इस लेक्चर में हमने पढ़ा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में बॉन्डिंग कैसे होती है। तो उसमें हम मैग्नेटिक बिहेवियर भी डिस्कस कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। फॉर एग्जांपल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हाइब्रिडाइजेशन में भी sp3 और मे बी sd3। फिर हमने जो डिस्कस किए कॉम्प्लेक्सेस, वो कॉम्प्लेक्सेस हमने डिस्कस किए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है जनरली dsp2 होता है। और यहाँ पर जो एक स्पेशल जो केस था वो था कॉपर का अमीनो कॉम्प्लेक्स, और वहाँ पर कॉपर 2+ कॉम्प्लेक्स था जिसको कोशिश की गई एक्सप्लेन करने की विद द हेल्प ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बट सक्सेसफुली उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और तीसरे तरीके के जो स्ट्रक्चर हमने इस लेक्चर में पढ़े वो थे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, जहां पर हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल मेटल एटम में क्या था, dsp3। फिर हमने इस लेक्चर में डिस्कस किए लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कि ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस क्या थी, क्यों नई थ्योरी जनरेट हुई। तो उसमें जो वेरियस जो लिमिटेशंस थी, एक तो लिगेंड के नेचर को ना बता पाना, दूसरा डिस्टॉर्शन के बारे में नई जानकारी दे पाई ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, कॉम्प्लेक्सेस में डिस्टॉर्शन क्यों होता है, तीसरा ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई ज्योमेट्री ऑफ CuNH3 2+, स्पेक्ट्रा एंड कलर को डिस्कस नहीं कर पाई, और एनोमेलस मैग्नेटिक मूवमेंट को डिस्कस नहीं कर पाया ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, और रिएक्शन मैकेनिज्म को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। सो दीज आर द डिफरेंट ड्रॉबैक्स ऑफ valence bond theory. So this is all about valence bond theory and its limitations. Next lecture में हम क्या पढ़ेंगे, about CFT theory. Thank you very much.